हाय, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एम्बियंस क्रिएशन के प्रोजेक्ट में। ये सेक्टर 22 गुड़गांव में पड़ता है और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं पे RRTS का स्टेशन होगा, यानी कि रैपिड रेल का स्टेशन होगा। मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले लोकेशन समझा देता हूँ। यहाँ अगर आप सामने देखेंगे तो ये ज्वाला मिल मार्ग है और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप NH8 की तरफ चले जाएंगे। सिमिलर वे में ये सेंट्रल गुड़गांव का रोड है, यहाँ से जिसे ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड भी बोलते हैं। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ पहुंच जाएंगे और कापासेड़ा बॉर्डर से भी अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरह जो यहाँ का लोकेशन है, यहाँ सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हयात प्लेस है और जब आप न्यू पालम विहार की तरफ से आएंगे, यानी कि बजगेड़ा रेल ओवर ब्रिज की तरफ से आएंगे तो आप इसी जगह पर निकलेंगे जहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे से उद्योग विहार जाने का भी रास्ता यही है और इस बोर्ड के ठीक 200 मीटर के बाद रैपिड रेल का स्टेशन है। तो आपको मैंने लोकेशन समझा दिया, तो इस वीडियो में इस पूरे सोसाइटी को देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे जो भी एमिनिटीज़ हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सैम्पल फ्लैट्स हैं, ये सब कुछ देखेंगे और जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट है, आई थिंक 15 एकड़ के करीब है। डिटेल में मैं अंदर जाके आपको बताऊँगा कि कितना एकड़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। काफ़ी ह्यूज है। फ़िलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इनका क्लब हाउस है। अभी हम क्लब हाउस के अंदर जाएंगे और फिर मैं आपको क्लब हाउस दिखाता हूँ। हाय सर। हाय, नाइस मीटिंग यू सर। मैं एम्बियंस के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि एम्बियंस ने गुड़गांव में क्या डेवलपमेंट किए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि द्वारका एक्सप्रेसवे में आपके प्रोजेक्ट्स कब आएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं, सी एम्बियंस इज मोर देन 3 decades old. राइट। It's a development company. It's a leading real estate company and has its interest in all facets of real estate, including but not limited to homes, offices, malls, schools. So we do all kinds of real estate, right. and we do the best. So we've been around for more than 3 decades. We as a group we started development in South Delhi. Then of course we came into Gurgaon. We have presence all over the country. We have interests all over the country. But yes, right now we are basically focused on Gurgaon. We are very, very city centric. In Delhi, we have developments in prime locations. Of course, if you know, our flagship development are the Ambience malls. Absolutely right. Then we have these great office towers in Ambience Island, which boast of top grade A level tenants. We have we've developed great residences all over Delhi, especially South Delhi, and then of course unmistakably we've created beautiful homes at the Ambience Island in Gurgaon, which is the lagoon firstly, which was way ahead of its time when it came in the early 2000s. It was the first real luxury home development, and then of course you can't miss Ambience Catriona, which is again lavishly sized apartments facing the golf course. We have 2 ongoing projects right now, residential, which is the Ambience Crescents, which is in sector 22 Gurgaon, which is again Bang city center, near the airport, close to the airport, great proximity to the national highway, surrounded with a good urban infrastructure. And then we have one again a very city centric project in Noida in sector 50 in Noida, which is Ambience Tiverton. Again luxury specifications for the for the people who know what quality construction and luxury is all about. And we have our hands full. We don't do too much together. We don't do too much together, but whatever we do it with great style, with great panache. We give full justice to what we create, and proof of the pudding is in our deliveries. Right. This you talked about Noida and Gurgaon and all over India. What about Dwarka Expressway? When are you going to launch your projects? देखिए, actually अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे में हमारा कोई इंटरेस्ट हुआ नहीं, although हमारा we have something which is there न्यू गुड़गांव में सेक्टर 82 में हमारे पास लैंड है, which we may intend to develop. तो अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करिए तो ये बिल्कुल उसके अबटिंग है. It's again बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है. तो ज़रूर अगर हमारा इंटरेस्ट सिटी सेंटर से ज़्यादा मतलब हमारी एपेटाइट होगी तो हम ज़रूर द्वारका एक्सप्रेसवे तक भी पहुँचेंगे. एंड दैट वुड बी कमर्शियल या रेसिडेंशियल? जो ये 82 का है, 82 या दैट इज कमर्शियल.
आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो सर कि मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ नहीं है लास्ट 10 ईयर्स में गुड़गांव में. हाँ. व्हाट आर योर व्यूज? बट आपको पता है कि एक्चुअली अगर मैं मेट्रो की बात करूं, आपको पता है ऑलरेडी रैपिड की एक्सपेंशन चल रही है. इंटरसिटी जो लाइन है, रेल हेड है. इनफैक्ट सेक्टर 22 में अगर आप इफ यू जस्ट Google it, there are these 3 rail heads which are coming right around हमारे बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट से 400 मीटर्स दूर रैपिड रेल स्टेशन है. तो एक्सपेंशन है, हुई नहीं है. यस, आई एग्री, बट अगेन ऑल दिस इज ऑन द कार्ड्स. इफ यू सी ऑलरेडी वो काम चालू हो गया है एक लाइन का. सो एज आई सेड, रैपिड और नो रैपिड, वी आर हैप्पी दैट इट इज़ कमिंग. बट अगर आप देखिएगा, हमारी प्रोजेक्ट की लोकेशन तो ऐसी है कि हमारा जो कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी है टूवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ गुड़गांव, चाहे वो NH8 हो या साइबर सिटी हो या सेक्टर 29 हो या महज नेशनल हाईवे तक पहुंचने की बात हो. सो वी आर merely 5 to 10 minutes away. So it's a great connectivity. The coming metro lines and the rail heads will add a lot of value to whatever is already there. Right, and it is very close proximity with the Dwarka Expressway also. Correct, absolutely. Right, and close proximity with airport. हाँ, वो तो है ही. वो तो भाई हमारे लिए तो ये एक बहुत ही एक USP है जी, जो हम ये क्लोजनेस या प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट है. सो at 6 o'clock in the morning, if you leave, you'll literally reach the airport gate in 10 to 12 minutes. Right, sir, right. So, even in peak hours, I mean, will not take more than 20 to 25 minutes to actually hit the airport. Right. एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा सर, since you are into so many domains, like स्कूल है, मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, कमर्शियल है, बहुत सारा गोल्फ भी है, राइट. अब आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या आपके जो होम बायर्स हैं, जो आपके नए प्रोजेक्ट्स में घर ले रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है इन सब चीज़ों से? क्या उनको भी कोई आप बेनिफिट देंगे? वेरी गुड क्वेश्चन. तो एक्चुअली आई एम फेयरली आई एम एक्चुअली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि हमारा एक कनेक्ट प्रोग्राम है, एम्बियंस कनेक्ट प्रोग्राम है, जो जिसकी ऑफिशियल लॉन्च इनफैक्ट अभी हम शाम को, इफ़ यू गेट टाइम प्लीज़ डू सी दैट. एम्बियंस कनेक्ट के अंतर्गत आपको जो भी एम्बियंस का होम बायर है उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिलेंगे इन सब चीज़ों पे. वेदर इट्स शॉपिंग, सो यू गेट अ डायमंड डायमंड मेंबरशिप in the ambience malls. That comes with a lot of benefits. You get discounts on your golf. You get access to just about everything that ambience offers, including the Leela hotels also. So you get a lot of discounts, privileges on F&B, dining, room stays. तो बेसिकली जो भी ambience की जो पूरी umbrella है, umbrella of services and products, just by being virtue of being a home buyer at Ambience, you get that Ambience Connect card and you get this special privileges of benefits and discounts and schemes across everything, including special discounts on admission fee at the schools also. Super. Yeah. So you have plans to expand your school chain? At the moment, the Gurgaon thing was a recent opening only. So we will first obviously consolidate what we have, and then of course our focus right now is on completion of all the ongoing projects right now. So once we do that, then we'll move on to a lot of as I said, हम तो हमेशा सोचते रहते हैं कि अगले क्या करना है, बट करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस को ज़रूर पूरा करते हुए हम अगले स्टेप्स लेंगे. ठीक है सर. एंड हाउ कॉन्फिडेंट आर यू आफ्टर दिस लॉकडाउन कि आप टाइम से डिलीवरी दे पाओ अपने सारे प्रोजेक्ट्स? सी, देयर हैज़ बीन थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई है, बिकॉज 4 महीने बिल्कुल एक्शन नहीं रहा. लेबर को रीमोबिलाइज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, बट एज आई सेड, आवर इंटेंट इज स्ट्रॉन्ग, वी आर रिसोर्सफुल, वी हैव द एक्सपर्टीज़. तो जो हमारी कमिटमेंट्स हैं अपने क्लाइंट्स, कस्टमर्स के प्रति, और जो रेरा के जो भी गाइडलाइंस, टाइमलाइंस हैं, हम उसके बिल्कुल वी विल कंप्लाई विद दैम for sure. Definitely we are very sensitive to the fact that these are the obligations to our investors, to the home buyers and everything, and I must say there are very few builders जो ये इस तरीके की सोच रखते हैं.
आप उनमें से एक है, बहुत खुशी हुई है जान के। एंड इवन दी होम बायर्स या इन्वेस्टर्स जो देखेंगे उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चीज़ को देख। थैंक यू प्रखर, थैंक यू। सर मुझे ये बताइए, आपकी टीम में से कौन मुझे ये प्रोजेक्ट दिखाएगा? सो आप एम्बियंस क्रिएशंस की बात करें तो हमारे सेल्स हैं नितिन श्रीवास्तव जी, उनके साथ उनके कोलीग्स हैं जो आपकी पूरी सहायता करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर साइट पे जाके ही उसका पूरा मतलब यू शुड गेट अ फर्स्ट हैंड फील ऑफ व्हाट द प्रोजेक्ट हैज़ टू ऑफर, द स्केल, द डिटेल्स, एवरीथिंग। यू विल बी डिलाइटेड। श्योर सर, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू प्रखर, थैंक यू। ओके नितिन, मैं तो आपको जानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आपको जानने लगे, तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। Hi viewers, my name is Nitin Srivastava and I am heading this project Ambience Creations। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि आप आइए यहाँ पर। We have a very good team and we have a very good product briefing and all everything। We have a good stuff so that you can understand कि हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। बट नितिन, इस वीडियो में हम सेल्स पिच नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम इन्फॉर्मेटिव रखेंगे। जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है अपने प्रॉस्पेक्ट बायर्स को या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर्स को या इन्वेस्टर्स को, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, लेकिन हम इसको सेल्स पिच नहीं करेंगे इस वीडियो। ठीक है, देखिए ये एक सेल पिच नहीं है। इनफैक्ट आज के टाइम में एक अच्छे अपार्टमेंट की और अच्छे घर की हर किसी को ज़रूरत है जी। इशू क्या हो रहा है कि इतने सारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इतने सारे डेवलपर्स हो चुके हैं, मतलब गुड़गांव में करीब 95+ डेवलपर्स हैं, लेकिन कोई मतलब आज के टाइम में लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि उन्हें ऐसा डेवलपर मिले जो उनके प्रोडक्ट को ऑन टाइम डिलीवर कर सके और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो अगर आप एम्बियंस की प्रॉपर्टी को देखते हैं, मतलब इनफैक्ट अवर 3 malls, 2 corporate towers, 2 residential property, 1 golf also, और दिस इज़ अवर 3rd रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दैट इज़ द एम्बियंस क्रिएशंस। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, क्योंकि इसको हमने बड़े ही तसल्ली बख्श कह सकते हैं बनाया है, और हमने इसको बेचना भी बनाकर शुरू करा है। 70% जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी थी, जब उसका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमने इसको बेचना शुरू करा, सो दैट कस्टमर को और इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आए कि बिल्डर भी अपनी जेब से पैसे लगा के प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो एम्बियंस ने प्रोडक्ट में लगाया है। प्लस आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या है, इसका पेमेंट प्लान। मतलब आपको कुछ भी अभी 80% या 90% या 50-50 कोई भी ऐसा प्लान नहीं दे रहा है। यू हैव टू जस्ट पे 25% एंड 75% एट अ टाइम ऑफ पोजीशन। और जब आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको फील होगा कि 25% जो मैं आपसे ले रहा हूँ दैट इज़ ओनली एंड ओनली लैंड कॉस्ट। मैं आपसे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ले ही नहीं रहा, क्योंकि हम अपनी पॉकेट से पैसा लगा के प्रोडक्ट को बना रहे हैं, और हम चाहते हैं आप पहले इसको बुक कर दीजिए, फिर जब आप सेटिस्फाइड हो तब आप पोजीशन पर इसका हैंड ओवर लीजिए। ऑल राइट, तो आइए अब हम प्रोजेक्ट चलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। बिल्कुल, आइए प्लीज़। अब सैम्पल फ्लैट में जाने वाले हैं। ये इनका एंट्रेंस है। आपका जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट होगा ये यहाँ पे होगा नितिन जी, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। और ये वाटर बॉडी है आपका? वाटर बॉडीज़ रहेंगे। ओके, तो जितने भी आपके ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स होंगे उसमें ऐसी वाटर बॉडी होगी जैसे यहाँ पे दिख रहा है? ऐसी वाटर बॉडीज़ बना के दे रहे हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करने के बाद कार यहाँ तक चली जाएगी या यहाँ कार यहीं तक रहेगी? अच्छा, फिर उतर के जाना है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये पूरे ग्लास फसाड हो जाएगा ऊपर से। ओके, ये पूरा ग्लास लगा होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम मैं कब तक आऊँ तो यहाँ ग्लास लगा हुआ दिखेगा? अभी तो टाइम लगेगा, रीज़न में क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर से, तो कुछ गिर के टूट ना जाए, इसलिए लगाना है। आफ्टर ओसी ओके, विल कंप्लीट। कब तक एक्सपेक्टेड है ओसी? ओसी वी आर ट्राइंग टू गेट मिड ऑफ कमिंग ईयर। ओके, देख कराने की कोशिश है। ये आप अच्छा, ये एंट्रेंस का लॉबी है। सो दिस वुड बी वेटिंग एरिया? This would be waiting area for tower 4 BHK tower। ओके, एंड दिस इज द सिक्योरिटी वाला? दिस इज सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शन लाउंज, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। दिस इज सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। Okay। फर्स्ट एट द मेन एंट्रेंस, राइट। दिस इज सेकंड, एंड थर्ड एट द लेवल ऑफ द फ्लोर। फ्लोर पे भी सिक्योरिटी? फ्लोर पे भी सिक्योरिटी लेवल है, क्योंकि वहाँ पे हमने CCTV कैमरे लगा रखे हैं। ओके, एंड देन यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। लिफ्ट कितने हैं इसमें? लिफ्ट 2 हैं, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, 2 लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है। ऑल राइट, और हम किस फ्लोर पे जाने वाले हैं? फर्स्ट फ्लोर पे हमने अभी एक्चुअल सैंपल बना। मुझे एक चीज़ बताइए नितिन जी, ये क्यों ऐसे बंद है अलग सा? ये स्टेयर्स के लिए है। स्टेयर्स एज इन? अच्छा, जो स्टेयर से जाना बाहर जो स्टेयर से जाना चाहें स्टेयर्स के लिए है। और ये आपकी लिफ्ट लॉबी हो जाती है। दिस इज 4 BHK टावर, 3976 स्क्वायर फीट। ऑल राइट, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, 2 और 4 है, 36 अपार्टमेंट है, 18 फ्लोर की हाइट है, 2 लिफ्ट्स हैं, 1 पैसेंजर, 1 इज अ सर्विस लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस है, 1 फायर फाइटिंग, एक नॉर्मल स्टेयर। एक फ्लोर पे 2 घर हैं, इसमें फ्लैट्स हैं। काफ़ी कॉस्टली होंगे? कॉस्टली इतने नहीं है जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि अगर आप लग्जरी की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट,
लग्जरी बेसिकली वो कितना ओपन एरिया मिल रहा है, क्या आपकी ग्रीनरीज आ रही हैं, आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर हम एयर कंडीशनिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें तो आप भी लगा सकते हो, मतलब अगर बिल्डर नहीं लगा के देता तो यू कैन ऑल्सो बाय एयर कंडीशन, मॉडुलर किचन स्पेसिफिकेशन। बट अगर लोकेशन पर अगर आपको एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट चाहिए सो दैट यू कैन गेट फ्री फ्लो ऑफ एयर, मतलब इधर भी अपना पार्ट विंडो खोल दी, इधर भी खोल दी, यू गेट द क्रॉस एयर वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट, तो वो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकता, उसके बाद नहीं मिल सकता, क्योंकि एक बार बन गया अपार्टमेंट तो बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे मार चुके हैं। नीचे वाले फ्लोर में देखा था मैंने, वहाँ पे लिफ्ट के बटन्स भी नहीं लगे थे, बट यहाँ पे आप लगे हुए दिख रहे हैं मुझे। एक्चुअली यहाँ पे बटन इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये अभी हमने एक्चुअल अपार्टमेंट बना रखा है, सो दैट कोई क्लाइंट आते हैं तो उनको फील आ जाएगी किस तरीके से बटन्स लगे होंगे। ओके, दो जो आप देखेंगे 2 लिफ्ट्स लगा रखी हैं, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, राइट, एक इधर, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर। तो इसमें से एक पैसेंजर लिफ्ट होगा और एक सर्विस लिफ्ट होगी। ऑलराइट, और किस कंपनी के लिफ्ट्स हैं ये? फ्यूजीटेक की लिफ्ट्स लगा रहे हैं। तो ये क्या हाई स्पीड लिफ्ट होता है? इट्स अ हाई स्पीड लिफ्ट। ओके, इस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया? रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 318 इज अ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, मार्च 2022 इज अ रेरा पोजीशन डेट। और आप पोजीशन कब देंगे? मार्च 2022 के हिसाब से में क्या है, वी आर ट्राइंग टू गेट पोजीशन सून, मे बी एंड ऑफ कमिंग ईयर हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। एंड ऑफ 2021? ओके, मतलब 1 साल पहले ही आप हैंड ओवर कर देंगे? 1 साल नहीं, करीब 3-4 महीने पहले। अच्छा, 3-4 महीने पहले। और अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो शायद हम दिवाली तक कर पाते, कमिंग दिवाली, मतलब नेक्स्ट दिवाली तक। ओके ओके, यहाँ पे साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं और प्राइस पॉइंट क्या है नितिन जी? इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक है 2 BHK विच इज 1380 स्क्वायर फीट, दैट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट। ओके, देन 3 BHK में वी हैव 2 कैटेगरी, वन इज 1860 विच इज 3 BHK नॉर्मल, एंड 2 कैटेगरी हैं 2781 एंड 3090 विच इज 3 BHK विद सर्वेंट। ओके, और जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज 4 BHK, दैट्स 3976 जिसके सैंपल फ्लैट पर आप अभी खड़े हुए हैं। अच्छा, और काफ़ी कॉस्टली होगा क्योंकि एरिया तो ये बहुत प्राइम है। एरिया प्राइम है क्योंकि अगर हम सेक्टर 22 की बात करते हैं, ऑर्गेनिक डेवलप जोन, मतलब द पावर ऑफ दिस लोकेशन इज दैट कि अगर कल मैं पोजीशन ऑफर करता हूँ एग्जांपल के लिए, तो लोग पैदल ऑफिस चले जाएंगे, यहाँ पे पैदल ऑफिस चले जाएंगे और परसों लोग शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि पोजीशन दिया लोग कहेंगे यार वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि आसपास में 30-32 साल से ऑलरेडी लोकेशन बिल्कुल डेवलप्ड है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो रैपिड रेल आने वाला है, उसका गुड़गांव का जो पहला स्टेशन होगा वो आपके मेन गेट से साइड वॉकिंग डिस्टेंस। एग्जैक्टली, वॉकिंग डिस्टेंस में। इनफैक्ट आप अगर बाहर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ग्रेट, काम शुरू हो, मैं उसको भी कवर करूंगा। बिल्कुल। आइए चलें आपके सैंपल फ्लैट पर चलते हैं। ये हमारी एंट्रेंस आ जाती है। ओके, सी दिस इज 3976 स्क्वायर फीट 4 BHK with servant, with store, with powder room and with store. You can see the quality of door. ह्यूज, क्या साइज है इस डोर के? मैं एक बार दूर से दिखा था। अगर हम सीलिंग हाइट की बात करते हैं ऑलमोस्ट 11 फीट। 11 फीट का सीलिंग हाइट है। फॉल सीलिंग लगा के इट कम्स क्लोज टू 10 फीट। ऑलराइट, क्योंकि हम फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं आपको अपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, ये सब आप करके फिनिश करके दे रहे हैं। यू विल गेट द सेम क्वालिटी। मतलब आपके सैंपल फ्लैट में मैं जो कुछ भी देखूंगा, जो कुछ देख रहे हैं आपको सब मिलेगा एक्सेप्ट मूवेबल आइटम्स। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या नहीं है। जी जी। तो अगर आप आते हैं तो ये डोर की क्वालिटी यू कैन सी द थिकनेस एंड ऑल। ओके, काफ़ी भारी डोर है, मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल डोर। अगर इस डोर की हम बात करें तो ये प्रॉपर वुड में बना हुआ डोर है। ओके, दिस इज प्रॉपर वुड डोर। ओके, ठीक है। उसके बाद जब आप एंटर करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड यू विल गेट अ गेस्ट रूम्स। दिस इज गेस्ट रूम। गेस्ट रूम्स। ओके, इसके अंदर आपको लाइट्स मिलेगी विच इज अ कोव लाइट्स, एयर कंडीशनिंग मिलेगी, हिटाची की एयर कंडीशनिंग दे रहे हैं हम इसके अंदर लगाकर, वार्डरोब्स मिलेगा और आप कंप्लीट आपको बाथ फिटिंग्स मिलेंगी। यू कैन सी। ओके, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम बाथ फिटिंग्स। अच्छा, ये सारा कुछ सब कुछ सेम सेम? हाँ, बिल्कुल सेम। मतलब जो दिख रहा है वो चीज मिल रहा है मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली दिस टॉवल इज नॉट अ पार्ट। यस यस, ऑफ कोर्स। ये आपका गेस्ट रूम हो जाता है। फैन भी लगा होगा? फैन नहीं है इसके अंदर। फैन इज नॉट अ पार्ट। ओके, वार्डरोब है, यू कैन सी द वार्डरोब। और इस रूम का साइज क्या है? इस रूम का साइज होगा करीब अराउंड 13 by 12। ओके, आपने इंटरनल रूम्स के भी जो डोर्स हैं वो काफी बड़े और लंबे रखे हुए हैं। डोर्स काफी, मतलब एक्चुअली एलिगेंट फीलिंग आनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ लग्जरी अपार्टमेंट ना। राइट। तो अगर आपको 6 फीट या 6.5 फीट की फीलिंग आएगी तो फिर आदमी स्पेंड नहीं करता है पैसा। राइट। क्योंकि हर किसी को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट देखते हैं।
तो यही कारण है कि हमने इसकी जो सीलिंग हाइट भी ज़्यादा रखी है। नॉर्मली 9.5 फीट की सीलिंग हाइट होती है अपार्टमेंट की, इट्स 10.5 और 10 सो हम फीट की हाइट। इस सोसाइटी को क्या बोलेंगे, ये अल्ट्रा प्रीमियम है या प्रीमियम है या अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम? इसको आप अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम नहीं, इसको आप एक नॉर्मल लग्जरी प्रोडक्ट कहिए। रीजन बीइंग क्योंकि हमने इसके अंदर 2 BHK भी बना रखा है। ओके। नॉर्मली जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में अपार्टमेंट्स हो जाते हैं, दे आर ओनली 3 BHK एंड 4 BHK, मे बी ओनली 4 and 5 BHK। ऑलराइट। तो हमने इसमें एक 2 BHK कैटर भी करा है, विच इज स्टार्टिंग विच इज नाउ वी आर सेलिंग एट 1.75, मतलब 2.25 करोड़ का 2 BHK, विच इज जिसको एक्चुअल में लग्जरी स्टाइल चाहिए ना 2 BHK, वो उनके लिए भी हमने बना रखा 2 BHK। ओके। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज अ मॉड्यूलर किचन। You will get exactly the same modular kitchen with all appliances. सब कुछ सेम सारे। मैं एक बार राउंड लेकर दिखा देता हूँ सबको। इवन आप फ्रिज भी लगा के दोगे? हाँ, आपको एक साइड बाय साइड फ्रिज भी मिलेगा। ओके। Along with 4 burner hob chimney। फ्रिज कौन सी कंपनी का है? फ्रिज हमने सीमेंस का लगा रखा है अभी इसके अंदर। यहाँ पे सीमेंस है, बट देने टाइम आप सीमेंस नहीं दो तो? नहीं, इट कुड बी इक्विवेलेंट, मतलब इसी लेवल का होगा, बट ऑब्वियसली इससे लोअर ग्रेड का नहीं होगा। ओके। एंड यू हैव दिस बालकनी आल्सो। दिस इज अ बालकनी, दिस इज सर्विस बालकनी। अब मैं आपको एक खासियत बताता हूँ प्रोडक्ट की। अगर आप देखेंगे तो हमारी बालकनी के अंदर भी इटालियन मार्बल लगा हुआ है। ओके। दिस एंटायर सोसाइटी हैव मोर देन 22 लाख स्क्वायर फीट इटालियन मार्बल। सुपर। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने कहीं पे भी टाइल्स का यूज नहीं किया। बट यहाँ पे बालकनी कवर क्यों नहीं है? ये आप करने वाले हैं? ये या कवर होगी बालकनी, होगी, बिल्कुल बालकनी कवर होगी। अभी एक्चुअली इसको एज अ सैंपल यूज कर रहे हैं हम लोग जी, तो उसको भी कवर नहीं करा। ये बालकनी कवर होगी। इनफैक्ट ये आपकी एयर कंडीशनिंग ओपन देखनी है, यू विल गेट द वुडन पैनलिंग आल्सो। ये भी अच्छा, इसको भी आप कवर कर देंगे? ये भी कवर रहेगी। और देन देयर इज अ वॉशर एंड ड्रायर आल्सो। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर स्पेसिफिकेशन। सो ये आप लगा के देंगे बाय डिफॉल्ट? हाँ, आपको इसमें हम ड्रायर एंड वॉशर भी लगा के दे रहे हैं। ड्रायर एंड वॉशर दोनों? ड्रायर एंड वॉशर दोनों, बिकॉज दिस इज योर सर्विस बालकनी व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर सर्वेंट रूम। ओके। सर्वेंट की आउटसाइड एंट्री है और बाहर। अच्छा, ये आपका सर्वेंट रूम है? सर्वेंट रूम है। मैं आपको सर्वेंट रूम दिखाता हूँ। इट्स नॉट अ नॉर्मल सर्वेंट रूम। जैसे नॉर्मल सर्वेंट रूम में क्या होता है, यू विल गेट ओनली फ्लोरिंग व्हिच इज अ नॉर्मल। आपने सर्वेंट रूम में भी मार्बल लगाया हुआ है? लगा रखा है। इनफैक्ट इन वॉशरूम आल्सो वी पुट अ मार्बल ऑन द वॉल। ओके। सो दैट दिस इज कॉल्ड लग्जरी। इफ किसी को अपना सर्वेंट रूम एज अ स्टडी यूज करना है तो उसको ऐसा फील ना आए कि वो सर्वेंट रूम में। सुपर। इसकी भी आप हाइट देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, काफी हाइट है। काफी हाइट लगा रखी है। आई थिंक ये इसमें फॉल सीलिंग नहीं है, राइट? इसमें फॉल सीलिंग। सो ये 11 फीट हो गया। 11 फीट हो गया। ओके। अब हम फिर से यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। ऑलराइट। इनफैक्ट आपने सर्वेंट रूम का भी जो साइज है डोर का साइड उसका सेम। हाँ। अब यहाँ से फिर हम री एंटर कर जाते हैं। जी। ये आपका एक स्टोर आया था और दिस इज योर स्टोर रूम। हाँ, आप चाहे तो इसको स्टोर और पूजा रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टोर रूम का साइज क्या है? स्टोर रूम का साइज है आपका 5.3/4। 5.3/4। 5.3 इधर एंड 4 इज विड्थ। राइट। ओके। और इसमें भी आप ऐसे वार्डरोब बना के देंगे? ये बिल्कुल आपको वार्डरोब बन के मिलेगी। ओके। दिस इज योर लिविंग डाइनिंग एरिया। ओके। दिस इज योर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करते हैं जी, अगर आप बैक साइड पे जाते हैं, बैक साइड फर्स्ट अगर आप पीछे की तरफ देखते हैं एंट्रेंस की साइड, राइट, तो दिस इज योर एंटायर फॉयर एरिया। ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, अपार्टमेंट खुलती ना लिविंग एरिया आ जाता है, राइट, सो दैट अगर जैसे कोई गेस्ट बैठे हैं तो सामने वाले अपार्टमेंट में दिख रहा है। राइट। तो हमने डिजाइनिंग इस हिसाब से करी है कि अगर गेस्ट यहाँ बैठे हैं तो किसी को पता नहीं चल रहा है आप उधर डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नोबडी कैन नो अगर आपका मेन डोर भी खुला हुआ है। इवन यू कैन हैव अ टेम्परेरी पार्टीशन, ऐसा पार्टीशन और कर्टन जो लगाना चाहे, बट आई डोंट थिंक सो कि लोग लगाएं, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को खुला चाहिए होगा। राइट। तो इधर आपकी बैल्कनीज आ जाती है, इट्स अ ह्यूज बैल्कनी। इधर आपकी बैल्कनी नहीं है, बट लेकिन प्रॉपर लाइट दिख रहा है मुझे। प्रॉपर लाइट आएगी क्योंकि इट्स अ 2 कोर कॉन्सेप्ट ना, तो एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, इधर से भी लाइट आएगी, इधर से भी लाइट आएगी। अब जैसे यहाँ से डोर खुल गया और मुझे सामने अपार्टमेंट दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ। हाँ, कोशिश करते हैं उनके घर में कौन से गेस्ट हैं उनको देखने की। गेस्ट तो नहीं दिख रहे, बट ठीक है, उन्होंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं। आप ऊपर भी देख सकते हैं, देयर इज अ वुडन पैनलिंग। ये हमने एयर कंडीशनिंग की डक्टिंग करी हुई है। अच्छा, ये जो वुडन पैनल दिख रहा है ऊपर, दिस इज द एंटायर डक्टिंग फॉर एयर कंडीशनिंग। ओके। इसका क्या साइज है जो लिविंग एरिया है? लिविंग एरिया का आपका साइज आता है 70.5/11 एंड डाइनिंग एरिया का साइज आपके 14/16.5। सुपर। एक बार मैं बिल्कुल एंड में जाके दिखाता हूँ ये कितना ह्यूज है। इसमें आप वॉल में जैसे ये लगे हैं सब कुछ लगा के देंगे?
This is not a part of interior, but you will get this wooden, not glass. अच्छा, विल नॉट गेट द ग्लास। ओके, सो यहाँ से लेकर वहाँ तक जी ये बालकनी चले। बिल्कुल आइए। Balcony is also huge. It's a 26 by 6 feet. वेरी नाइस। बालकनी के जो ग्लासेस हैं, हाँ जी, ये टफन ग्लास है? टफन ग्लासेस हैं। मतलब इसको मैं तोड़ूँ अगर तो टूटेगा नहीं नहीं, मतलब आसान नहीं लोगों को तोड़ना। ठीक है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं आपको किट करके एंड जो हम इसमें ये जो ग्लासेस लगे हैं यहाँ पे डबल ग्लेज है। डबल ग्लेज है, इसके अंदर क्या साउंड प्रूफ है ये? साउंड प्रूफ ग्लासेस है, प्लस आपके एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब सो दैट आपकी जो एयर कंडीशनिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। ओके ओके। ये पार्टीशन क्यों है? उधर भी बालकनी है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या है कि देयर इज अ लॉ व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट अ ईयर बैक कि आपको 2 स्टेयरकेस बनाना है, वन इज अ फायर फाइटिंग। जी। तो ऑलरेडी हमारी बिल्डिंग बन चुकी थी, ओके। तो जब ये लॉ बीच में आया तो हमें रीसेंशनिंग के लिए हमें दोबारा से स्टेज बनाना पड़ा, तो हम ये अच्छा। स्टेज बना रहे हैं। ओके। इन स्टेज की जो ओपनिंग होगी वो आपकी इस बैल्कनी के अंदर होगी, क्योंकि ये सिर्फ फायर फाइटिंग के केस में ओपन होंगी। राइट, समझ गया। तो ये अभी विच इसलिए इज मैं अगेन बंद अ कर प्लस रखा है। पॉइंट। बालकनी में जूते चप्पल खोल के अंदर आ जाए घर पे। नहीं, एक्चुअली स्टेज से कौन आएगा? फिर फर्स्ट भी- फ्लोर तो ठीक है, first floor तो बट ठीक नॉट है, फॉर right. 10th और 11th। राइट राइट। ये इस अपार्टमेंट में टोटल कितने रूम्स है? 3। इसमें 4 BHK है। अच्छा, ये plus 4 servant BHK है। 4 ये BHK 4 प्लस BHK सर्वेंट। तो हमने किचन देख लिया, हमने सर्वेंट रूम देख लिया, हमने Guest room देख गेस्ट लिया। रूम देख लिया और हमने स्टोर देख लिया। और हमने स्टोर देख लिया। नाउ दिस इज योर पाउडर रूम। ओके। द साइज ऑफ पाउडर रूम इज 6.5 by 4। 6.5 by 4 फीट। जी। ओके। फिर जब आगे आप आते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज अ वन रूम, जिस सेकंड रूम है जिसको आप किड्स रूम भी कह सकते हैं। ओके। ये हमने एज अ स्टडी किड्स रूम बना रखा है। इसमें आपको मॉडुलर किचन, मॉडुलर वार्डरोब्स, कंप्लीट बाथ फिटिंग्स। ओके, इसका क्या साइज है? इसका आपका साइज आता है 15 by 11। 15 by 11। ये नॉर्मली घरों में मास्टर बेडरूम का साइज हाँ, होता है। नॉर्मली साइज मास्टर बेडरूम। अच्छा, इसमें ये जो 15 by 11 है, इसमें ये वार्डरोब का वार्डरोब स्पेस का पार्ट स्पेस इंक्लूडेड नहीं है, वो बिल्कुल अंदर की तरफ है। दिस इज सेपरेट। और ये भी इसका बना हुआ होगा। हाँ, ये भी बना आई थिंक 2.5 फीट का तो ये इसका बिल्कुल डेप्थ ही है। एक्चुअली नॉर्मली ये 24 इंचेस का होता है, सो दैट यू कैन हैंग योर सूट्स। राइट। 24 इंच की रिक्वायरमेंट होती है सूट को टांगने के लिए। एंड दिस इज योर दिस इज योर वॉशरूम। वॉशरूम में सेम फिटिंग्स होंगे? सेम फिटिंग है, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम फिटिंग्स। और इसमें भी हर जगह आपने मार्बल लगाया है। बिल्कुल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 22 लाख स्क्वायर फीट इटालियन मार्बल यूज हुआ है। मुझे एक चीज बताइए, इसमें क्या फॉल सीलिंग है बाथरूम के फॉल ऊपर? सीलिंग है इसके अंदर। ओके, तो कल को अगर कोई सीपेज आ जाता है हाँ जी। तो उसका पैसा आप चार्ज करेंगे जिनका घर है उनसे, या आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट करके नहीं, देंगे? मैं बताऊं एक्चुअल में क्या होता है, एज पर द लॉ, अब जो ऊपर के अपार्टमेंट में रहता है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटिंग विद सीलिंग। ठीक है। जैसे अगर ये मान लीजिए सेकंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर में अगर सीलिंग में कोई सीपेज आता है तो वो आपके सेकंड फ्लोर वालों को कराना पड़ता ठीक है। ये बाय लॉज गवर्नमेंट के कहते हैं। ठीक है। बट 3 साल तक तो हम हैं, क्योंकि 3 साल बाद 3 साल या RWA 5 साल? नहीं, 3 इयर्स के लिए ही गवर्नमेंट अलाउ करता है कि डेवलपर एज RWA, अगर RWA चाहेगी तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बट आफ्टर 3 इयर्स हमें RWA फॉर्म करनी पड़ती है। ऑलराइट। इसके साथ भी बालकनी है, राइट? इसके साथ भी balcony है। This is again a 6 feet wide balcony. 6 फीट बाय 11.5. 11.5। ओके। तो एक बालकनी वहाँ पे हो गया, सर्विस बालकनी इस किचन का। एक एंड देन ये लिविंग के साथ देख ली, राइट। और एक आपने मास्टर किड्स रूम के साथ देख ली। अगर आप देखेंगे तो दिस इज SS। व्हाट इज एसएस? ये स्टेनलेस स्टील है, और ये हमने करीब, अगर आप सारे SS जितनी बालकनीज में लगी है ना, तो अगर एक लाइन में लगा देंगे, इट्स 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर? Yes. अच्छा, ये एक नया मेजरमेंट है इसको मेजर करने अगर के लिए। हमारे पूरे सोसाइटी में 20 किलोमीटर की SS की रेलिंग लगी है, मतलब अगर हम एक लाइन में, अगर एक लाइन में लगा रहे थे, राइट। ये आपका जो है ये पूरा वाटर बॉडी, ये क्लब एरिया है विच इज 60,000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप। अभी हम इसके बाद क्लब भी जाएंगे। हाँ, क्लब भी चलेंगे हम। ठीक है। ये अभी वाटर बॉडीज हमने ऑपरेशनल नहीं करी है। वहाँ पर आपके 3 पूल आते हैं विच इज ऑल वेदर टेम्परेचर कंट्रोल है। 3 पूल? 3 पूल है, 1 इज अ हाफ ओलंपिक, 2 आपके किड्स पूल है। अच्छा, 2 किड्स पूल दिए हैं अच्छा। आपने। ओके। ऑल वेदर टेम्परेचर कंट्रोल है, बट नॉट कवर्ड, इट्स अ टेम्परेचर कंट्रोल। टोटल ये जो टाउनशिप है ये कितने एकड़ में है? 14.85 एकड़ में है। 14.85 एकड़ में है। और इसमें अपार्टमेंट्स टोटल कितने? इसमें 880 अपार्टमेंट, 880 अपार्टमेंट्स। और FAR कितना यूज़ किया है हमने इसमें? 1.75 यूज 1.75 यूज़ किया। FAR तो सर देखो,
डेवलपर पूरा यूज़ कर लेते हैं जी। और मतलब यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको FAR यूज़ करने के लिए। बट ये है कि हमारे जितने टावर्स हैं, हमारे पास टोटल 20 टावर्स हैं, 20 में 13 टावर्स 2-2 कोर है, एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट है, तो आपको ना एयर वेंटिलेशन हमेशा रहेगा, सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पर 4-2 कोर होता है या 6-2 कोर होता है, 3-2 कोर कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट्स होती है उनकी बड़ी दिक्कत हो जाती है, सनलाइट्स कहीं पर पहुँचता है, कहीं पर नहीं पहुँच पाता है। और अगर आप वास्तु के हिसाब से देखें तो सनलाइट और एयर का पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपार्टमेंट के अंदर। ओके। तो इसीलिए हमने 13 अपार्टमेंट ऐसे बनाए हैं जो बिगर कैटेगरी के हैं, जो 3090 और 3976 के हैं, उनको हमने 2-2 कोर कॉन्सेप्ट पे बना रखा है। ओके। क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर है, आप इस डोर को खोल दो, सामने वाले अपार्टमेंट के विंडो को ओपन कर दो, पूरी हवा जाएगी यहाँ पर, क्रॉस होगी आप। वो अभी देखा था हमने। वो तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके। थर्ड टावर में सनलाइट जाए इसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ इसकी ओरिएंटेशन इस हिसाब से जो मैं आपको मॉडल में बता दूंगा। ओके। इसकी ओरिएंटेशन जो टावर की पोजीशन मॉडल में 3D मॉडल में आप बता देंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी हम बज रहे हैं 1 जी, और अभी भी वी आर गेटिंग द सनलाइट हियर, राइट, है ना। और एक और चीज़ जो नॉर्मली ग्रुप हाउसिंग में मिसिंग होती है, दैट इज अ पार्किंग। वी हैव अ 3 लेवल ऑफ बेसमेंट पार्किंग। 3 लेवल। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ 14.85, तो एंटायर 3 लेवल इज अ बेसमेंट, तो अप्रॉक्स 45 एकड़ की बेसमेंट पार्किंग है। एक्चुअली करीब 2500 गाड़ियों की पार्किंग है हमारे। 2500 कार्स की। कार की पार्किंग सर। टोटल अपार्टमेंट्स कितने बताए थे आपने? 880। 880, मतलब एक फैमिली में 3 कार हो तब भी चलेगा। आराम से रख सकते हैं, मतलब इजीली, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल सोसाइटीज में दिक्कत होती है। बेसिकली क्या है कि जो एम्बियंस है उसका बैकग्राउंड कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी का है, राइट। तो वी आर मोर फोकस ऑन दीज बेसिक फैसिलिटीज, इस पे लोग फोकस नहीं करते हैं। Right. पार्किंग होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, टैलेंट लगाना चाहिए। अब जैसे आपने -3 तक का पार्किंग बनाया हुआ है, जी। अब जैसे हमने देखा था कि DLF गोल्फ कोर्स रोड जो है उसमें बारिश के टाइम पे फ्लड जैसा आ गया था सिचुएशन, और जितने भी अच्छे अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर बेसमेंट में पानी जम गया था, पानी चला गया था, वो भी फ्लडेड हो गए थे। यहाँ पे भी वो सिचुएशन होगा? इनफैक्ट अभी लास्ट टू लास्ट जब रेन हुई थी जी, तो दिस इज द ओनली लोकेशन जहाँ पे पानी नहीं भरा था। इनफैक्ट आगे रोड पे भी नहीं भरा था सामने। ओके। हाँ, और अगर आपको याद हो जब गुरुग्राम हुआ था जी, तो एम्बियंस आइलैंड इज द ओनली लोकेशन जो हमारी है, वहां पे वाटर ब्लॉकेज नहीं हुई थी। सुपर। तो मतलब, और ये हम नहीं, ये न्यूज़पेपर भी क्लेम करता है। मतलब हमारे जो रेजिडेंट है उन्होंने हमें स्पेशली, अभी जब गोल्फ कोर्स रोड की आप बात कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली वीडियो मैंने भी देखा था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सी सोसाइटी का वीडियो था। बट हमारे जो रेजिडेंट हैं जो एम्बियंस आइलैंड में रहते हैं, उन्होंने हमें मैसेज करके इन्फॉर्म करा कि यहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं है जो ब्लॉक। वेरी नाइस। एंड अगर कस्टमर्स ऐसा बोले तो डेफिनेटली, मतलब, और वो भी जो रेजिडेंट जो रह रहे हैं, Right. जो 4 साल पहले हम ऑलरेडी हैंड ओवर कर। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया जी, जो मैंने आपसे उस बालकनी में पूछा था कि क्या ये नॉइज रेसिस्टेंट हैं ये ग्लासेस, अभी हमने बंद करा, आपको बंद feel किया आ तो गया। मुझे अंदर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। फिर हम आते हैं, दिस इज योर थर्ड रूम। ओके। आपका थर्ड बेडरूम है ये। इसका क्या साइज है? इसका साइज सर आपका आता है व्हिच इज 14 बाय 12। 14 फीट बाय 12 फीट। यस। इसमें आपने वार्डरोब नहीं दिया है? वार्डरोब अंदर है वॉकिंग क्लोजेट के साथ। ओके, ओके। एंड जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वो सब कुछ मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट ये सब भी मिलेगा मुझे, ये और बेड नहीं मिलेंगे? मूवेबल आइटम्स, दिस इज द मूवेबल। ओके, मूवेबल आइटम्स नहीं मिलेंगे मुझे, बाकी फैन, एसी मिलेगी, आपको कोव लाइट्स मिलेगी, फॉल सीलिंग मिलेगी, डोर्स मिलेंगे, वार्डरोब्स मिलेगा, आपको बाथ फिटिंग्स कंप्लीट मिलेगी। और दिस इज द सेम बालकनी जो लिविंग डाइनिंग से देखा था 26 बाय 6 की। ये कनेक्टेड है। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है? Interconnected हम वहां से देखे थे? वहां से देखा था हमने, अब आप यहाँ से। ऑलराइट। ओके, यहाँ पे आपका वार्डरोब है जी। ये मैं, हाय, इसको ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, ये भी This is a modular wardrobe, so that when you open, light is on. तो वार्डरोब ऐसे ही मिलेगा हमें बना हुआ, हाँ जी, राइट? बिल्कुल ऐसे। एंड यहाँ पे ग्लासेस भी लगे हुए होंगे? बिल्कुल सब एग्जैक्टली सेम फिटिंग है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको ना मिले। सेम फिटिंग। योर शॉवर क्यूबिकल्स भी मिलेंगी आपको। ओके। Now, और फायर फाइटिंग के क्या इसमें प्रोविजंस हैं? फायर फाइटिंग्स के एज पर नॉर्म सारे प्रोविजंस दिए हुए हमने, आपके स्प्रिंकलर्स वगैरह सब लगा रखे हैं। ओके, दिस इज योर मास्टर बेडरूम? This is master bedroom. When you enter, you will get a wardrobe here also. There's a 2 type of wardrobe. One is the inside of your master toilet, and second is outside. ओके। So that जैसे मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर अंदर यूज कर रहे हैं तो आधा सामान वो बाहर रख सकते हैं। राइट।
है ना, ऐसा तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। करेक्ट। सो वी मेक 2 वार्डरोब्स है। एंड आपके वार्डरोब के साइजेस बहुत अच्छे हैं, साइजेस बहुत अच्छे हैं, डेप्थ बहुत अच्छी है। डेप्थ तो इतना 2.5 फीट कम से कम। ये आपका दिस इज योर मास्टर बेडरूम। मास्टर, इसमें भी बालकनी है? इसमें बालकनी है, दिस इज थर्ड बालकनी। तो अगर आप 4 BHK में देखेंगे तो यू विल गेट द 3 साइड बालकनी। ओके। तो अभी आपने राइट टू लेफ्ट देखा, नाउ दिस इज योर स्ट्रेट बालकनी। और मैंने किचन के पास देखा था 3 AC लगे हुए, यहाँ पे भी 3 AC लगे हुए हैं। हाँ, तो टोटल कितने AC हैं आपके? यहाँ पर अगर हम बात करते तो 6 और 7 एयर कंडीशनिंग। ओके। एंड दीज आर कमिंग विद द अपार्टमेंट्स, उसी प्राइस में उसी प्राइस में इंक्लूडेड है। दिस ऑल आर दी जो हम लगा रहे हैं दैट इज हिटाची एयर कंडीशनिंग। सो हाइट वेज अगर आप देखेंगे ना, देखिए डक्टिंग करी हुई है जी, मतलब कहीं पे आपको यूनिट नहीं दिखेगी, आपको वहाँ फील पे सेंट्रल एसी का ही आएगा। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अगर आपको 4 BHK का एसी रन करना है तो आप यहीं का एसी चलाओ। तो आपने VRV क्यों नहीं लगा दिया? आपने एक इंडिविजुअल एक्चुअली VRV में क्या इशू होता है कि जैसे VRV इज बेसिकली पेटेंट फॉर डाइकन। ओके। VRF लगा सकते थे जो तोशिबा एंड ऑल देते हैं, बट दिक्कत क्या होती है VRF में, क्योंकि मैंने अपने पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा है, अगर मान लिए आपका लिविंग एरिया का एसी खराब हो गया जी, तो आपको सारे आउटडोर्स बंद करने पड़ते हैं। ओके। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग, जिसको हाइडवे कहते हैं, तो जिसको छुपा के रखा गया है जी। हाइडवे एयर कंडीशनिंग में क्या होता है कि अगर आपका लेट सपोज लिविंग एरिया का एसी खराब हुआ तो सिर्फ आपको उसका आउटडोर यूनिट बंद करना है, बाकी आपके पूरे अपार्टमेंट के एसी चलेंगे। ऑलराइट। तो VRV में ये दिक्कत होती है, इसलिए VRV प्रेफर करते हैं लोग ऑफिस स्पेसेस। बट इलेक्ट्रिसिटी बिल किसमें कम आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ऑब्वियसली जब आप ये कम रन होगा तो इसी में होगा ना, जहां बैठे हो वहीं का रन करोगे एयर कंडीशनिंग, ओके। तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। ओके। ये आपका इस मास्टर। रूम का साइज आपने क्या बताया? इस रूम का साइज है सर इट्स 15 बाय 12.5। एंड यहाँ पे अगर और ये ब्लाइंड्स को अगर हम हटा देते हैं तो पीछे ग्लासेस हैं और पूरा लाइट होगा, राइट? इस तरीके से लाइट्स आ जाएगी जैसा। राइट। दिस इज वॉशरूम। दिस इज योर मास्टर टॉयलेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टडी रूम है। इसमें एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसके अंदर भी आपकी जो वार्डरोब्स दी हुई हैं, ओके। और ये जो आपकी वार्डरोब्स हैं अगर आप देखेंगे दिस इज वॉशेबल। अच्छा, है ना, और जैसे जब आप शावर लेते हैं हॉट वाटर से तो स्टीम आ स्टीम आ जाता है। जाती है, तो स्टीम प्रूफ से है। ओके। इन वार्डरोब्स में आपको ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वुड में ना कभी कभी दिक्कत हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद वुड भी खराब होने लगा। हाँ, सुपर। ये पूरी मॉडुलर वार्डरोब। काफी बड़ा और स्पेशियस है। हाँ, आई थिंक कल को किसी को स्टडी रूम बनाना हो तो इसे भी स्टडी रूम बना सकते हैं वो कन्वर्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल। काफी बड़ा। और इसमें जो भी फिटिंग्स हैं वो सारे फिटिंग्स मिलेंगे। सेम बात, फिटिंग सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके। और इसका साइज क्या है इस बाथरूम का? इस बाथरूम का आपका साइज आता है 8.6 बाय 6। आपका ड्रेसर का हो गया साइज, और आपका जो वॉशिंग एरिया है वो आपका आता है 8 बाय 5। ओके। एंड ये भी आपने बहुत अच्छा किया, ये पता ही चल रहा है डोर यहाँ पर। तो ये हमने स्लाइडर, इससे क्या होता है कि आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है राइट। डोर से। हमने देख लिया ऑलमोस्ट, ये कुछ बचा है। टोटल बालकनीज कितने हो गए? 1 2 3 4 4 बालकनीज हो जाती हैं, जिसमें 2 कनेक्टेड हैं। राइट। लिविंग डाइनिंग जो 26 बाय 6 की है, बाकी कॉमन है। तो ये आपकी अब ये लग्जरी अपार्टमेंट है जी, तो यहाँ पे डेफिनेटली मेंटेनेंस बहुत हाई होगा। मेंटेनेंस हाई नहीं है। रीज़न बताता हूँ इसका कि दिस इज़ अ सोसाइटी, हमने आपको अपार्टमेंट भेज दिया। जी। अब जो मार्बल्स हैं ये तो अब आपके पोर्शन में आ गई। मेंटेनेंस है कॉमन एरिया की। जी। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हमारे पास 880। राइट। ठीक है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट 880 हैं। और अगर आप आज के टाइम में देखते हैं जो मेंटेनेंस जो हाई होती है दैट्स डिपेंड ऑन द डीजल प्राइस, क्योंकि कॉमन एरिया की रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। उसके कारण से आपकी डीजल प्राइस के कारण होती है। तो अभी जो मुझे लगता है जब तक इसका पोजीशन होगा विद इन ईयर्स टाइम के अंदर, द मेंटेनेंस विल बी अराउंड 3-3.5 रुपीज़। ओके। इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट। ऑलराइट। और इसमें आपने कुछ एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें की हैं, जैसे सोलर सिस्टम का कुछ पैनल लगाया हो या सोलर पैनलिंग, जितने भी आपकी जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं अंदर, इंटरनल जो लाइट्स हैं सारी सोलर पैनलिंग पे बेस्ड है। इट्स अ गवर्नमेंट नॉर्म्स, आपको करना ही करना है। ओके। मतलब आपको आजकल हर जगह जितनी भी 2016 और 15 के बाद की सोसाइटीज़ बन रही जी। हैं उन सब में सोलर पैनल आपको यूज़ करना है फॉर कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो अब हमने आपका ये सैम्पल फ्लैट देख लिया, जी। अब क्या दिखाने वाले हैं आप? अब मैं आपको इसका क्लब दिखाता हूँ अपना। दिस इज अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया। 60,000 स्क्वायर फीट। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लब।
और अगर मैं इस पूरी बेल्ट की बात करता हूँ, सेक्टर 22, पालम वे 23, 21, जी दिस इज अ ह्यूज हिमंगस क्लब। अगर आप इस क्लब की बात करेंगे, पहली चीज कि इट्स ऑलरेडी रेडी, मतलब ऑलमोस्ट 40% इज रेडी, ग्राउंड फ्लोर इज रेडी, वी आर Okay. ऑपरेटिंग अवर सेल्स ऑफिस देयर राइट Okay. नाउ। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये जो आपका क्लब एरिया है पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। ऑल राइट तो क्लब के अंदर अगर मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर, जी बाद में जय विल टेक केयर, जय इज माय Okay. कलीग, ही विल जय जय हाय जय विल टेक केयर द क्लब। क्लब की अगर ब्रीफिंग की हम बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे देयर इज अ बॉलरूम एरिया विच इज अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट। All तो right. आप उसके अंदर करीब 150 से पौने 200 लोगों की गैदरिंग इजीली कर सकते हैं, Okay. विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद किचन। ओके तो आपको पूरी सर्विस मिलेगी, सो दैट अगर आपने कोई स्मॉल फंक्शन करना है, रिंग सेरेमनी करनी है, बर्थडे करना है, तो जी। यू विल डू दैट। और अगर आपको कॉर्पोरेट पार्टी भी करनी है, यू कैन डू दैट। ओके प्लस एक 8,000 स्क्वायर फीट के अंदर जिम्नेजियम बनाना है, इट्स अ ह्यूज 8,000 स्क्वायर फीट यस 8,000 स्क्वायर फीट के अंदर देयर इज अ जिम्नेजियम। आपका कॉफी शॉप एरिया आता है विच इज ओवरसीन टू पूल एरिया। Okay. आपको वहां से बैठ के ना पूल एरिया दिखाई देता है पूरा पूरा। फिर जब हम फर्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, फर्स्ट लेवल पे वी हैव अ 2 रेस्टोरेंट अलॉन्ग विद किचन और एक स्मॉल पार्टी एरिया बना रखा है। देन देयर इज अ क्रच आल्सो, सो दैट Okay. आज के टाइम में क्या है 80% हस्बैंड वाइफ्स आर वर्किंग। राइट तो नॉर्मली उनको कहीं दूसरी बाहर जाके बच्चों को ड्रॉप करना पड़ता, तो वो यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी हैव आवर ओन क्रच। ओके हमने स्पा, सलून और सीनियर सिटीजन जोन भी फर्स्ट लेवल पे बना रखा है, वेरी सो दैट नाइस। आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर फुलफिल होती है। तो सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहूंगा, मतलब लोगों को एक बार आके देखना चाहिए, द सेकंड फ्लोर वी हैव 18 गेस्ट रूम्स, नहीं। 18 गेस्ट रूम 18 गेस्ट रूम्स हैं। एवरी रूम साइज इज अराउंड 300 स्क्वायर फीट एरिया। ओके तो आपको पूरी होटल की फील आएगी, सो दैट अगर आप कोई फंक्शन करते हैं घर के यहाँ जी। पर और आपको गेस्ट को रोकने के लिए कहीं बाहर रूम्स वगैरह लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रूम्स क्या बहुत कॉस्टली होंगे? इट्स नॉट अ कॉस्ट, इट्स अ नॉर्मल रेट, क्योंकि ये सोसाइटी का ही क्लब है जी तो सोसाइटी के हिसाब से ही लोग यूज करेंगे। ओके तो उसका नॉमिनल चार्जेस होंगे, दैट इज नॉट डिसाइडेड येट, क्योंकि जब एक बार हु इज द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होगा वही इसको डिसाइड। मान लीजिए मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ और मैं घर में रह के बोर हो गया, तो मैं भी जाके आप बिल्कुल रूम लेके रह सकता आप बिल्कुल रूम लेकर रह सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके गेस्ट आते हैं और आप दे आर नॉट कंफर्टेबल विद योर, जैसे मान लीजिए कोई यूएस से आया, उनको जेट लैग की इशू है, राइट और आप लोग तो यहाँ पर हिंदुस्तान में तो शोर शराबा Right, होता रहता है, right. तो आपने उनके लिए 3 दिन के लिए रूम बुक कर दिया, सो दैट उनका जेट लैग जब तक खत्म हो, जेट लैग, फिर उन्होंने यहाँ पर आके आपके साथ कंफर्टेबल हो गए। प्लस हमने बिजनेस सेंटर भी बना इनफैक्ट ये भी बहुत अच्छा हो गया कि अगर कोई बाहर से आ रहा है हाँ। और कोविड का टाइम है कोविड के तो टाइम वो 15-14 डेज के लिए जब तक क्वारंटाइन हो जाए, कोविड जा चुका होगा। आई होप सो। हाँ, प्लस देयर इज अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आल्सो, जिसमें वी हैव अ 1 बिग कॉन्फ्रेंस रूम, 2 मीटिंग रूम्स एंड देयर इज अ 12 to 15 प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट, सो दैट अगर आपको ऑफिस नहीं जाना है और आपको लगता है कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं या थोड़ी डिस्टर्बेंस है या किड्स हैं, उनकी भी क्लासेस चल रही हैं, जी। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो यू कैन गो देयर एंड यूज दैट ऑफिस। तो वो चार्जेबल होगा या चार्जेबल आवर बेसिस पे, जैसे नॉर्मल क्लब में होता है। Okay. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैव द फैसिलिटीज एट योर डोर स्टेप। आपको Right. बाहर नहीं आना Right. कि अब आपको ऑफिस लेना तो पता चला कोवर्क या वर्क स्टेशन पे जा रहे हैं, उद्योग विहार में ढूंढ रहे हैं, साइबर सिटी में ढूंढ रहे हैं, Right. ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ये सारी सोसाइटी यहीं पर आपके पास सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ओके तो अभी जय आपको दिखा देगा। अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर इज ऑलमोस्ट रेडी। Alright. फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में अभी काम चल रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर विल गेट कंप्लीट द एंटायर वर्क ऑफ क्लब एरिया आल्सो। ओके तो अभी हम चलते हैं। हम चलते हैं क्लब हाउस पर। मैं तो आपको जानता हूँ लेकिन मेरे व्यूअर्स शायद आपको नहीं जानते होंगे, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चाहता हूँ मैं। मेरा नाम जय गुप्ता है और मैं एम्बियंस के साथ 3 साल से एसोसिएटेड हूँ और इस प्रोजेक्ट क्रिएशंस को सेल्स मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे एज मैनेजर सेल्स। ओके थैंक यू फॉर कमिंग हियर प्रखर, इट्स बिन अ वाइल। मैं आपके साथ कोशिश कर रहा था कि आप आओ और हमारे गेस्ट के साथ लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सको। जी। तो आइए आज मैं आपको क्रिएशंस की तरफ लेके चलता हूँ और इस प्रोजेक्ट से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। डेफिनेटली। कुछ फीचर्स है हमारे, लाइक आप देख सकते हो हमने यहाँ पे हाईलाइट भी किए हुए हैं, जैसे Okay. कि ये प्रोजेक्ट है सिस्मिक जोन 5 पे बन रहा है ऑलराइट। इंस्टेड ऑफ सिस्मिक जोन 4 जो हमारी गाइडलाइंस है। सिस्मिक जोन 5 पे आप बना रहे हाँ हैं, जी। बट दिल्ली गुड़गांव तो सिस्मिक जोन 4 में आता तो है। बस वही हम क्वालिटी हमारी एम्बियंस की, यू कैन बी सर्टन अबाउट दैट। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं हमारी कोशिश रहती है कि हम उससे एक नॉच ऊपर ही करें। इसमें मुझे कुछ फीचर्स दिख रहे हाँ हैं जी, ये क्लब हाउस हमारे के। क्लब हाउस के हैं 60,000 स्क्वायर फीट का जो अप्रॉक्स क्लब हाउस है। Okay. उसकी हमने फ्लोरिंग वाइज आपको दिखाया हुआ कि किस फ्लोर पे क्या किड क्या जोन, amenities- क्रैच, कार जोन, पार्टी हॉल टेरेस, जकूजी, लॉकर, स्पा, लाइव किचन, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, मसाज रूम, सलून, बार एंड सिगार लॉन्ज, पार्टी चैम्बर, गेस्ट रूम्स, बिजनेस सेंटर, लॉन्ज,
मल्टी फंक्शनल कॉन्फ्रेंस रूम्स। जिम कहाँ है? ये फर्स्ट और सेकंड आपने जिम नहीं लिखा है इसमें? ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स के फीचर है। ग्राउंड फ्लोर को भी अच्छा। अभी हम आपको एक्सपीरियंस करवा पा रहे हैं, तो ओके हाईलाइट नहीं है। ओके, और ये क्या है? ये हमने जो हमारा पहला प्रोजेक्ट डिलीवर किया था राइट एट द एम्बियंस आइलैंड, Alright. एम्बियंस लगून इन 2001। 2001। हाँ जी। ओके, एक और बोर्ड, अच्छा अभी और काफ़ी हाँ जी बोर्ड सर, हैं। काफ़ी है। जैसे 20 कि किलोमीटर फ्रॉम ग्रेड ए। सर जो बैल्कनीज हैं हमारी टफन क्लासेस की, उसका जी। जो बॉर्डर है वो एसएस रेलिंग का है। ओके, तो अगर आप किलोमीटर वाइज देखोगे अक्रॉस दी अपार्टमेंट्स बैल्कनीज जो हम अगर मैं इसको बिछा दूँ एज अ रेलवे ट्रैक। 20 किलोमीटर की रेलिंग है वो। ओके हाँ जी। ग्रेट, वहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है। हाँ जी, जैसा मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हम 3 वर्टिकल्स के अंदर हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो ये हमारे स्कूल्स हैं, 2 स्कूल, एक सफदरजंग दिल्ली में और एक गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। द्वारका एक्सप्रेसवे में एम्बियंस का प्रोजेक्ट कब आएगा? द्वारका एक्सप्रेस वे देखिए सर, अभी हमारी कुछ लैंड्स ऑलरेडी हैं, लाइक न्यू गुड़गांव अगर आपने देखा होगा, सेक्टर 82 पे हमारी एक लैंड है कमर्शियल की। ओके, भूमि पूजन हो चुका है। अगेन वेरी अर्ली टू स्पीक, बहुत जल्द वहाँ पे हमारा मॉल आएगा। ओके, मैनेजमेंट वुड बी, मतलब कि मिस्टर कॉल वुड बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन कि क्या एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन डेट रहेगी उसकी। ओके। बट वहाँ पे हमारा मॉल आना है। ठीक है। अनदर 65 एकड़ लैंड इज देयर राइट बिहाइंड एम्बियंस केट्रियोना विच इज़ कंप्लीट एम्बियंस आइलैंड। ओके, वो टोटल 135 का लैंड पार्सल है, जिसमें से अभी हमने अराउंड 70 एकड़ डेवलप किया है। ऑलराइट। तो 65 एकड़ ज़मीन वहाँ भी है। फर्दर प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है जो आएंगे विद टाइम। जय, ये आपका क्लब हाउस है राइट? दिस इज़ द क्लब हाउस एंट्रेंस। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे एंटर करते हो, सबसे पहले हमारा क्लब हाउस होता है और फिर टावर्स स्टार्ट होता है। ओके, एज ऑलरेडी शेयर्ड बाय नितिन जी, जिसका ग्राउंड फ्लोर अभी हमने पूरा डेवलप कर दिया जी, है। जी। ऊपर के फ्लोर्स पे भी काम चल रहा है। तो अराउंड 40% क्लब हाउस रेडी है। अच्छा। एंड इट्स अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस अप्रॉक्स। ओके, तो आई कैन बी वेरी श्योर, और आप भी असर्टेन रह सकते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हाउस है गुड़गांव में, अगर मैं किसी भी 15 एकड़ की डेवलपमेंट की बात करता हूँ। बट मुझे एक अश्योरेंस दीजिए आप कि जो यहाँ के रेसिडेंट्स होंगे जिन्होंने घर ले लिया है यहाँ पे ऑलरेडी, जो पहला रेसिडेंट मूव करेगा, क्या आप उसको क्लब हाउस की फैसिलिटी डे 1 से देंगे? 101 अच्छा, कंफर्म है ये? 101%। बल्कि वी आर प्लानिंग, जैसे ही क्लब हम 100% ऑपरेशनल करते हैं, जी। तो अगर वो पोजीशन से पहले भी होता तो हम क्लब का प्रीव्यू करेंगे। जितने भी लोग ले चुके हैं जी। उनके लिए एक प्रीव्यू करेंगे सर हम। ओके, और ये आपका पार्क एरिया होगा, ग्रीन एरिया होगा? ये ग्रीन एरिया है, लैंडस्केपिंग है फ्रंट पे सारी। ये आपका अच्छा। क्लब का ड्रॉप ऑफ जोन है, क्योंकि ओके। क्लब के अंदर हमारे बैंक्वेट हॉल्स भी हैं। कल को आप जो भी रेजिडेंट्स हैं, अगर उनको कुछ इवेंट करते हैं, ओके, तो उनके लिए वैले के साथ बेसमेंट में पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल राइट। हाँ अच्छा, वैले फैसिलिटी भी आप देंगे? फॉर द विजिटर्स जिनका कोई इवेंट हो रहा है। ओके, और नीचे कितने गेस्ट के कितने पार्किंग हो सकते हैं? 200 कार पार्किंग बेस है गेस्ट के visitors के लिए, लिए, विजिटर्स के लिए, विच इज़ ह्यूज इनफ। एब्सोल्युटली। और अगर फिर भी ज़्यादा पड़ता है तो? उसके बाद भी देखिए 200 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डे टू डे के लिए है, जो अपार्टमेंट्स में अगर मूव ऑन कर रहा है। जी। अगर बैंक्वेट हॉल के लिए फिर अलग से है हमारे पास, तो उसको भी ओके। यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, ये सारा ग्रीन एरिया है राइट? सारा का सारा ग्रीन है, फ्रंट आपका पूरा ओपन रहेगा। बट अभी मुझे सारा आपका लैंडस्केपिंग नहीं दिख रहा है। अभी ठीक से। लैंडस्केपिंग हम बहुत धीरे धीरे फेजेस पे कर रहे हैं। जी। रीजन बीइंग कि अगर आज मैं लैंडस्केपिंग कर देता हूँ, बिकॉज इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, ओके, काफ़ी हैवी व्हीकल्स की भी कई बार मूवमेंट होती है सामान लाने ले जाने के लिए, जी। तो इट्स एन एडिशन टू द कॉस्ट। अगर लैंडस्केपिंग ख़राब होती है, कल को मुझे उसको दोबारा चेंज करना है, ओके। और ऑब्वियसली उसको आज नहीं तो कल मुझे अपने फिर कॉस्ट पे ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ अ बर्डन टू दी गेस्ट और दी बायर्स, जो मैं नहीं चाहता। तो कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैं देख सकूँ कि बन जाने के बाद कोई 3D मॉडल हो जिसमें मैं देख सकूँ कि बन जाने के बाद कैसा बिल्कुल लगेगा? हमारा मॉडल है, उस पर हम आपको दिखा सकते हैं। है आपका बना हुआ? 60% ओपन स्पेस है। ओके, जैसे कि क्लब हाउस हमारा 60,000 स्क्वायर फीट का है। वी कैन टेक अ टूर ऑफ द ग्राउंड चलिए सरफेस पे, जहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे ग्रीन्स आने। बिल्कुल, चलिए हाँ जी। चलिए। सो दिस वुड बी द क्लब हाउस एंट्रेंस। ओके, ये आपका रिसेप्शन है, अगेन डबल हाइट लॉबी रिसेप्शन। सो ये डमी क्लब हाउस है या ओरिजिनल क्लब हाउस होगा? एग्जैक्ट क्लब हाउस, ओके, जिसको हम ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट रेडी कर चुके हैं। ऊपर के फ्लोर्स पे हमारा काम चल रहा है। रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन के ठीक पीछे आपको ओपन कोर्टयार्ड और वाटर बॉडीज है। अच्छा, जैसे वो दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये हमेशा ऐसे ही ओपन रहेगा? एब्सोल्युटली। अभी तो ये मतलब आप जो देख रहे हो उस पर काफ़ी काम होना बाकी है। जी। इसमें वाटर बॉडीज भी आनी है, आप ओके। देख सकते हैं, जो अभी फंक्शनल नहीं है। हाँ, वाटर बॉडी तो अभी फंक्शनल नहीं है। मैं आपको अभी अपने जिम की तरफ लेके चल रहा हूँ। जिम ये जिम है आपका? ये जिम है हमारा, जैसे नितिन जी आपको शेयर कर रहे थे, अराउंड 8,000 स्क्वायर फीट का जिम्नेजियम है ये हमारा। पूरा जिम स्पेस है? पूरा जिम स्पेस है आपका। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि पूरे गुड़गांव में किसी भी प्रोजेक्ट पे इतना बड़ा आपको हेल्थ स्टूडियो नहीं मिलेगा सर। ओह, ये तो काफ़ी बड़ा है। एब्सोल्युटली, दिस इज अच्छा, इधर भी है? हाँ,
एक बार मैं चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ, इस पॉइंट से दिखाऊंगा तो चारों तरफ वहाँ से दिखेगा। दिखाएंगे तो आपको कर राइट, तो वहाँ से हमने एंट्री लिया था। जब ये जिम फंक्शनल होगा, अभी तो फिलहाल फंक्शनल नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये फंक्शनल होगा तो देखिए कितना बड़ा होगा। मैं आपको चारों तरफ घूम कर दिखाता हूँ। ह्यूज है, मतलब मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि इक्विपमेंट्स लगे हुए होंगे इसमें तो कितना बड़ा रहेगा। मतलब आपने इतना बड़ा जिम खोल दिया यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा जिम बना रहे हैं। इक्विपमेंट्स अगर आप लिमिटेड इसमें रखोगे तो कोई भी आएंगे, उनको पता चल जाएगा कि अरे ये नहीं है उसमें, वो नहीं है, आपको तो सब कुछ भरना पड़ेगा। हमारे ऑलरेडी मतलब कि बातें चल रही हैं, मतलब कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू नेम एनी ब्रांड, बट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड जैसे एम्बियंस और जो एम्बियंस की लेगेसी रही है जी, जो यहाँ पे ब्रांड ऑपरेशनल होगा वो बहुत रेप्यूटेड ब्रांड होगा। ओके, ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स भी सारे इक्विपमेंट्स, मतलब कि हर चीज़, मतलब कि जो शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी जिम्स में नहीं मिलती होगी, बहुत हाई एंड जिम्स में मिलती होंगे, वो भी यहाँ पे रहेंगे। सुपर। जब होगा आपका शुरू तब मैं ज़रूर आके वीडियो बनाऊंगा कि डिफरेंस पता चलना चाहिए कि आप वादा कर रहे हैं जो वो एक्चुअल में आप डिलीवर करोगे या नहीं। सर हम अभी प्लान भी कर रहे हैं कि जैसे ही क्लब हाउस ऑपरेशनल होता है, जी, चाहे वो पोजीशन से पहले भी हो जाता है, तो वी विल बी हैविंग ए प्रीव्यू फॉर द क्लब हाउस ओके, फॉर ऑल द गेस्ट हु हैव परचेज द प्रॉपर्टी। ओके, तो आप तो सर घर के बंदे हो, आप एनी टाइम हो, हम आपको डेफिनेटली इनवाइट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये आपका पूल स्पेस सामने, इसको हम वहाँ से कवर करते हैं, आई थिंक ज़्यादा। हाँ ठीक है, हम वहाँ से कवर करते हैं। तो पहले हम, बिल्कुल। अब आप क्या दिखाने वाले हैं? अब मैं आपको पूरा क्लब का ग्राउंड फ्लोर ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके फर्स्ट फ्लोर में तो काम चल रहा है अभी। फर्स्ट फ्लोर पे अभी काम चल रहा है, सेकंड पे भी काम चल रहा है। कितने लेबर हैं टोटल आपके साइट पे जो काम कर रही होगी इस वक्त? देखिए वैसे जो हमारी प्री कोविड था, एनी टाइम 1200 से 1500 लेबर रहती थी। Okay. इस वक्त अभी अराउंड 500 लेबर है, एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर वेरी सून। हमारे कुछ एनजीओज वगैरह से बात चल रही है ओके, दोबारा से अपनी पूरी की पूरी वर्कफोर्स लेके आने के लिए। ऑल राइट। सो दिस इज द वेटिंग लाउंज एरिया। All right. ये आपका बेकरी शॉप रहेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये बेकरी हाँ, शॉप इसको अभी हम अपने क्यूबिकल्स वर्क स्टेशंस की तरह यूज। राइट। आपने इसी को अपना ऑफिस बनाया हुआ है बेसिकली? हाँ, अच्छा, ये ऐसे ही रहेगा? ये आपका फॉयर है। राइट। ये क्या है? ये हम दोबारा जिम की तरफ चल रहे हैं, बट वी हैव द मेंस एंड द वुमेन्स रूम ओवर दिस प्लेस, जहाँ पे स्पास वगैरह सारा। अच्छा, यहाँ पे स्पा होगा मैन? ये हमारे स्पा के हैं। ओके, फिलहाल अभी स्पा तो नहीं है बट Changing rooms वगैरह। जी जी। और ये अगेन आपका स्विमिंग पूल की तरफ ओपन हो जाता है। अभी हम यहाँ पे थे जिम में, अब हम दूसरी तरफ से घूम के आए हैं। तो ये आपका पूल एरिया काफ़ी ह्यूज है। पूल एरिया है जहाँ पे आपका जकूजी है, ओके, नॉर्मल पूल है, टॉडलर्स है, स्प्लैश पूल है। ये दोनों टॉडलर्स है, हाँ जी। यहाँ पे और यहाँ पे। वो हमारा जकूजी रहेगा। जकूजी वो वाला? हाँ जी। टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है आपका। सबसे पहले पानी तो नहीं है बट मैं स्विमिंग पूल होके आ जाता हूँ। ये जकूजी भी दिखाता हूँ आपको। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं स्विमिंग पूल के अंदर आया हूँ। अच्छा, ये आपका जकूजी का एरिया। और अभी हम जिस फ्लैट में थे वो आई थिंक ये वाला टावर था, बिल्कुल राइट? जी, इसी के फर्स्ट फ्लोर पे थे आप। ओके, तो जैसा आप यहाँ से देख सकते हो, इट्स 3 साइड ओपन अपार्टमेंट। राइट आप जब सर्विस बैल्कनी में थे या किड्स बेडरूम वाली बैल्कनी में थे, आपको क्लब का बैक साइड दिख। राइट राइट। तो एक बार मैं पूरा राउंड लेकर दिखा देता हूँ। कितने एकड़ में है ये टोटल? अप्रॉक्स 15 एकड़ है, टू बी एग्जैक्ट 14.81 एकड़। 14.81 एकर्स। हाँ जी। ये एरिया जब ग्रीन हो जाएगा पूरा और वेल मेंटेन हो जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। ग्रीनरी हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, और अभी आप देखोगे अभी तो ये ग्रीन मतलब कि बहुत लिमिटेड ग्रीन्स डेवलप किए जी। हमने। जैसे भी आप ये ओपन बारबेक्यू, ये डेक एरिया, बारबेक्यू एरिया होगा? हाँ जी। ओके। ऑलमोस्ट सारे सोसाइटीज़ जो है यहाँ के उनको पूल फेसिंग मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। ये सारे के सारे पूल फेसिंग है, आपके क्लब फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। ओके। अब क्या दिखाने वाले मैं हैं? आपको अभी अंदर से कॉफ़ी शॉप एरिया दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये इसके अंदर कॉफ़ी शॉप हाँ एरिया जी, है अभी ये बाहर से लॉक पे काम चल रहा है। ओके। तो आपकी फैसिलिटीज़ का इसमें मिनी थिएटर होगा? मिनी थिएटर नहीं है इस पे। ओके। इसमें हमारे ग्राउंड लेवल पे जैसे मैंने आपको जिम्नेजियम दिखाया है, कॉफ़ी शॉप है, बेकरी शॉप है, ओके। टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा डे केयर क्रैच और प्ले टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल ओपन स्पेस में या अंदर? ओपन स्पेस पे। ओपन में। ओके। देन आपका ऊपर डे केयर क्रैच और प्ले स्कूल है, क्योंकि ये लोकेशन कॉर्पोरेट हब से बहुत सराउंडेड है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड है, आज नहीं तो कल एक ये बहुत बड़ी नेसेसिटीज़ हो गई है मॉडर्न Right. लाइफ स्टाइल के लिए।
Right. तो वो जो हम आपको इन हाउस फैसिलिटेट कर रहे हैं. ओके, यू हैव योर 4 रेस्टोरेंट्स, बिजनेस सेंटर, प्लग एंड प्ले. ये बंद है. कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ. ये आपका कॉफ़ी हाउस ये एरिया, राइट? कॉफी हाउस एरिया. आप सीलिंग अभी हम वहाँ पे थे पूल हाँ के जी, पास. जी. स्पोर्ट्स के लिए क्या है? जिम हो गया और क्या है? जिम है, सॉकर फील्ड है, टेनिस, बैडमिंटन, Soccer वॉलीबॉल, field भी है? बास्केटबॉल. हाफ सॉकर फील्ड है. अभी कहाँ मैं पे आपको है? दिखाऊंगा. ओके, सो ये जो हमारा है, ये वॉशरूम्स है ऑल फॉर राइट. द गेस्ट. यहाँ पे लिफ्ट लॉबी है क्लब के यूसेज के लिए, और स्टेयरकेसेस है जो ऊपर जाती है. ओके, आपको मैं लेके चलता हूँ हमारे बैंक्वेट हॉल की तरफ. बैंक्वेट हॉल. बैंक्वेट आपके हॉल बैंक्वेट हॉल का साइज़ क्या है? अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट है, जहाँ पे आप अराउंड बहुत इजीली 200 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं. अच्छा, ये ऑपरेशन है. इसको अभी हम एज ए सेल्स नाउ यूज़ कर रहे हैं एट दिस मोमेंट. ओके, सो दिस वुड बी द बैंक्वेट हॉल एरिया विद लाइव किचन राइट बिहाइंड इट. अच्छा. मैं चारों तरफ घूम जाता हूँ एक बार. तो काफ़ी अभी हम huge है. इसको एज ए सेल्स नाउ यूज़ करते हैं. ओके, कल को रेजिडेंट्स का कुछ भी इवेंट होता है इस जगह को वो ले सकते हैं अपने लिए. ऑल राइट. पीछे लाइव किचन है. आप हमारी इन हाउस केटरिंग यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं. अगर अच्छा. बाहर से करना चाहते हैं. मुझे वहाँ पे 3D मॉडल आपका दिख रहा है, हाँ जी, वहाँ चला. बिल्कुल. ये आपका 3D मॉडल है. हाँ जी. तो इसे समझते हैं, ये बैक फेसिंग है, राइट? हाँ जी. और ये क्या है आपके विलाज? ये विलाज है हमारे, लो राइज. लो राइज विला. इसके क्या कॉस्ट है? ये 12 CR ऑनवर्ड्स हैं. इसका सुपर बिल्टअप एरिया है 10,500 स्क्वायर फीट. 10,500 स्क्वायर फीट, 6 BHK. 6 BHK. इसमें स्विमिंग पूल भी इस है? पे स्प्लैश पूल है, लॉन है. Okay. लिफ्ट इंस्टॉल करके देंगे हम आपको. अच्छा, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है पूल्स हैं छोटे. सो काफ़ी लिमिटेड्स बनाए हैं हमने, और अभी इसको ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करते. प्लान है कि इसको जब तैयार करके ही बेचे की पोजीशन. ओके. तो ये आपका मेन एंट्रेंस है जहाँ से हाँ जी. हमने एंटर किया था, ये बिल्कुल. इस जगह से. हाँ जी. और यहीं से लगभग 400-500 मीटर के बाद आपका रैपिड रेल का स्टेशन. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है. ओके. आप मेरे को यहाँ मिले थे जहाँ से हमने क्लब में एंटर किया जी. था. क्लब का मैंने आपको जो टूर दिया था स्विमिंग पूल, तो बेसिकली 3 जोन्स में प्रोजेक्ट है. तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो एक्चुअली क्लब के वो अंदर दिस है. इज द क्लब का Right. बैंक्वेट हॉल एरिया है. Right. हाँ, जिसको अभी हम एज ए सेल्स लाउंज यूज़ करते हैं. ओके. तो बेसिकली ये क्लब जोन है. क्लब जोन के पीछे आपका क्लब जोन के पीछे स्विमिंग पूल है, स्केटिंग रिंग एरिया है और ग्रीन्स है. स्केटिंग रिंग एरिया कहाँ पे? यहाँ पे और किस जगह पे? ये जो आप देख रहे हैं बीच में वो, ये जो हाँ जी. सर्कल जैसा दिख हाँ रहा है. ओके, ऑल राइट. उसके बाद ये आपने कुछ बताया था कि अलग अलग 3 विंग्स हैं आपके. ये हमने बेसिकली 3 जोन्स में, ये क्लब जोन है, स्पोर्ट्स जोन है और कल्चरल जोन है. क्लब जोन, स्पोर्ट्स जोन ये स्पोर्ट्स जोन, एंड टूवर्ड्स. और मैं उधर आता हूँ. हाँ जी. यहाँ पे हमारा कल्चरल जोन है. अच्छा. कल्चरल जोन के अंदर ओपन एयर एम्फी थिएटर है, ओके. योगा मेडिटेशन सेंटर है, ओके. सीनियर सिटीजन थिंक टैंक है, फिटनेस स्ट्रिप्स हैं. ओके. और स्पोर्ट्स के में अंदर क्या-क्या सॉकर है? फील्ड है. ये जो बीच में ग्रीन एरिया दिख रहा है पूरा सॉकर. ये पूरा हाफ सॉकर फील्ड है. ऑलराइट. और बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल वॉलीबॉल जाके शीशे में लगेंगे तो टूटेंगे तो नहीं? नहीं, वो तो आपकी पूरी नेटिंग्स हो जाती हैं. अच्छा, नेटिंग्स करके. हाँ, और मल्टीपल लेवलिंग्स पे कर रहे हैं इसको. ओके. और वो क्या इंटरनेशनल है, लेवल एक पे ग्रीन सा वहाँ पे दिख रहा है मुझे. वो सिट आउट एरिया रहेंगे हमारे. अच्छा. हाँ जी. नहीं, जो आपने चारों तरफ से कवर किया हुआ है लॉन टेनिस है. हाँ जी, वो आपका. ओके. और छोटे बच्चों के लिए क्या है? टॉडलर्स के लिए? टॉडलर्स के लिए जगह जगह पे पार्क्स हैं आपके. कहाँ पे होगा वो? एक पार्क एरिया हमारा यहाँ पे है, एक अच्छा. सामने की तरफ है. ओके. तो मल्टीपल जगह पे आपको चिल्ड्रंस के खेलने की और सिट आउट एरिया रहेंगे. अच्छा. हाँ. आपने बताया कि यहाँ पे ये जो पेरिफेरी है पूरा, हाँ. इसके बीच में कोई भी वेहिकुलर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा? मूवमेंट नहीं है. नहीं, सारा का सारा स्पाइन एंड जॉगिंग ट्रैक है आपका ये. ओके. तो हम चलें आपके एक्चुअल में देखें कि कहाँ कहाँ पे बना हुआ है. बिल्कुल. मेरे ख्याल से सारा तो बना हुआ नहीं होगा अभी आपका, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी पे. अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ डेडिकेटेड जोन. 100% येस रेडी नहीं है, बट हम मतलब कि हाँ देख सकते हैं कहाँ पे क्या ओके. चीज़. और मेरे ख्याल से वो जो लास्ट बिल्डिंग है उस वाले बिल्डिंग में अगर हम चले तो वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वाला साइड दिखेगा हमें. अगर हम उस टावर में जाएंगे, के टावर के इस टावर थोड़े में? हायर, इधर से नहीं, के टावर के हायर फ्लोर से, तो हमें द्वारका एक्सप्रेस वे दिख सकता है. ओके. हाँ. ठीक है. इस समय मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ इस प्रोजेक्ट के, और मैं चारों तरफ आपको घूम कर दिखा देता हूँ. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, पेंटिंग सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं. जय, मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि पेंटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, सारे कोर्ट्स नहीं डले हैं, और कुछ टावर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ चल रही है. कब तक यहाँ पे मुझे सारा फिनिश्ड पेंटिंग दिख जाएगा?
पेंटिंग का ऑलरेडी हम अपने वेंडर्स को एडवांस दे चुके हैं। Okay. बिकॉज ऑफ पैंडेमिक थोड़ी सी लेबर्स की दिक्कत है, तो वो Okay. भी धीरे धीरे कर रहे हैं काम। अदरवाइज हमने एडवांस फैब में ही पे कर दिया था। ओके तो बट ये पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा डिले है, बट वेरी सून अब आपको दिखने लग जाएगा पेंट। और ऑब्वियसली आपको काम चलता हुआ दिख रहा है क्योंकि सारे के सारे टावर्स पे फिनिशिंग का काम चल रहा है जी। सुपर स्ट्रक्चर्स हमारे रेडी हो चुके हैं, सब पे फिनिशिंग्स का काम चल रहा है, फ्लोरिंग हो रही है। ओके जैसे आपने देखा था, क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट पे इटालियन मार्बल फ्लोरिंग कर रहे हैं। फ्लोरिंग रहेगी, फिर नेक्स्ट स्टेपिंग उसकी पॉलिशिंग और बफिंग पे आता है। लिफ्ट लग गए सारे टावर्स? लिफ्ट इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है, अनदर 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन ऑपरेशनल कर देंगे हम सारे टावर्स में? लिमिटेड टावर्स में। Limited सारे towers टावर्स में इस वक्त चालू करना इसलिए खतरनाक या फिर थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा बिकॉज वारंटी शुरू हो जाएगी लिफ्ट की। Okay. वी डोंट वांट कि मूव इन लोग 1 साल बाद करें, वारंटी आज से लिफ्ट की शुरू हो जाए वेंडर की। ओके। तो हाँ, अभी यहाँ पे मैंने आपको पूल एरिया दिखाया था और ये क्लब हाउस है। अब हम इसके दूसरे सेक्शन में देखें, अगर हम यहाँ से इस तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है यही आपका फुटबॉल ये ग्राउंड हमारा हाफ सॉकर फील्ड है बिल्कुल। ओके। तो बस बेसिकली ये यहाँ- स्पोर्ट्स जोन है, जैसे कि ये हमारा सॉकर फील्ड हो गया जी। ऑन दी लेफ्ट साइड वी हैव दी बास्केटबॉल कोर्ट एंड वॉलीबॉल कोर्ट। वहाँ पे उस हाँ वाले जी, सेक्शन में हाँ अभी जी। तो डेवलप हो रहा है, अभी डेवलप हुआ डेवलप नहीं हो रहा है। ये पूरी की पूरी आपकी पाइन वॉक ट्रैक है। जी। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि बीच में इनसाइड कोई भी व्हीकलर मूवमेंट नहीं है, वो सारा का सारा आउटर पेरीफ्री पे। राइट, तो यहाँ पे कोई भी व्हीकल मूव नहीं कोई करेगी, व्हीकल मूव नहीं कर। बट बच्चे साइकिल तो चला सकते हैं यहाँ पे। साइकिल और जॉगिंग ट्रैक ही है बिल्कुल। ओके। मुझे एक चीज़ बताइए, अब आपने इतनी बड़ी सोसाइटी, चारों तरफ अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, हाँ जी, और यहाँ पे आपने सॉकर हाँ के जी। लिए ग्राउंड बना दिया। हाँ। बच्चे फुटबॉल खेल रहे, जोर से मारा और शीशे टूट गए तो? कंप्लीट नेटिंग्स रहेंगी आपकी। ओके। और सॉकर फील्ड भी जो हम डेवलप कर रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप कर रहे हैं विद Okay. मल्टीपल लेवलिंग ऑफ पैडिंग्स फॉर सेफ्टी ऑफ द किड्स। मैंने शोभा सिटी का प्रोजेक्ट देखा था जहाँ पे उन्होंने T20 का मतलब 2020 के लिए क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है। तो आपका ये पहला अपार्टमेंट देख रहा हूँ जहाँ पे सॉकर फील्ड बना हुआ सॉकर है। फील्ड है हमारी। Superb. हाँ जी, अच्छा, आपके जो यहाँ पे ग्लासेस हैं वो तो टफ एंड ग्लासेस टफ हैं, एंड ग्लासेस तो टूटने नहीं चाहिए नहीं, और शोर भी नहीं आना चाहिए अगर एक बार बंद हो गया तो? साउंड प्रूफ है, बट फिर भी हम अपनी पूरी सेफ्टी लेके चल रहे हैं, तो नेटिंग्स रहेंगी आपकी। Okay. हाँ। तो यहाँ पे ये वाला जोन है आपका प्ले जोन, स्पोर्ट्स जोन। स्पोर्ट्स जोन है बिल्कुल। स्पोर्ट्स जोन के बाद आपका हम कल्चरल cultural जोन zone वहाँ पे। हाँ जी, तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर सनलाइट आपको टावर्स पे अगर आप देखोगे तो नज़र आएगी आपको। जी जी। अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है सर, बल्कि कोविड के बाद जैसे ही गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आप कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो, जी। वी वर द फर्स्ट डेवलपर टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। ओके। हर डेवलपर यही बोलता है कि वी वर द फर्स्ट डेवलपर, ये कैसे मैं मानूं कि आप ही फर्स्ट डेवलपर थे? सर मतलब कि हमारी इन हाउस लेबर हमने यहीं ठहराई हुई थी, अच्छा, कुछ अराउंड 300-350 लेबर कोविड में 2 महीने। मतलब पहले डे 1 से काम शुरू हो हाँ गया जी, था। हाँ। ओके। तो मतलब ऐसा नहीं था कि लेबर कहीं से बाहर से आनी थी, इट वाज हियर ओनली। तो Okay. हमें वो एडवांटेज मिल गया था और हमने शुरू कर दिया। मुझे एक चीज़ बताइए, आपका यहाँ पे एम्बियंस मॉल भी है पास में, हाँ जी, राइट? आपके और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैंने घर ले लिया, मैं यहाँ का होम बायर हूँ, यहाँ पे मैंने घर ले लिया, या यहाँ का इन्वेस्टर हूँ, यहाँ पे मैंने घर ले लिया, तो मुझे एम्बियंस मॉल के मूवी के टिकट्स फ्री में दिलवाओगे आप? बेसिकली सर हमारे ना 3 वर्टिकल्स हैं जी। रियल एस्टेट वर्टिकल है जिस पे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर है हमारा, एक हमारा स्कूल है दिल्ली में, अभी Okay. रिसेंटली हमारा गोल्फ कोर्स रोड पे स्कूल स्टार्ट हुआ है 5 एकड़ का, Okay. एम्बियंस पब्लिक स्कूल, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है विद लीला होटल, एम्बियंस मॉल गुड़गांव एंड करकरदुमा दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। जितनी भी हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं जी। इसको हमने इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट किया हुआ है। ओके। लाइक जब ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हो जाता है, किसी को मॉल जाना है गुड़गांव, तो यहाँ से नॉन स्टॉप शटल सर्विस है सर उनके लिए। ओके। सपोज़ कि कोई यंग बच्चे हैं जो वर्किंग है लेकिन उनके पेरेंट्स घर पे है एंड दे नीड टू गो टू द मॉल, ओके। बेफिक्र होकर नीचे उतरे, शटल में बैठे, मॉल चले जाएं, जो भी काम अच्छा। खत्म करना है शटल में बैठे दोबारा यहाँ आ जाए। ओके। हमने कॉन्शियस सर्विस भी इंट्रोड्यूस की है ऑल राइट। कि मॉल गए हो आप, अपने शॉपिंग करी है, नो जी। नीड टू कैरी दी हैंड बैग्स, Okay. वहीं कॉन्सियर पे ड्रॉप कर दीजिए, लेट देम नो यू आर एट द क्रिएशंस, वहाँ की कॉन्सियर से यहाँ की कॉन्सियर पे सामान डिलीवर, जैसे एयरपोर्ट मेट्रो में करते हैं। एब्सोल्युटली Superb. एट योर डोर स्टेप्स। बट आप डिस्काउंट भी दोगे यहाँ के रेसिडेंट्स बिल्कुल को? सर, अगर आप जितनी भी शॉपिंग करते हो हम आपको एक कार्ड बना के देते हैं, प्लेटिनम कार्ड, ओके। उस पर आपको बेनिफिट्स है डिस्काउंट्स के ऊपर। अगर आप मॉल पे करते हो तो 7% तक का कैशबैक है आपका एम्बियंस मॉल में ही? मॉल में। हमारा Superb. 9 होल गोल्फ कोर्स है, ओके। उसकी आपकी अगर आप खेलना चाहते हो उस पर डिस्काउंट्स है आपको। ओके। लीला होटल के अंदर, स्वीट्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर डिस्काउंट्स है आपको। All right. तो जितनी भी एम्बियंस की प्रॉपर्टीज़ है, क्रिएशंस को, बायर को, जी। हर जगह कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे सर। वेरी नाइस।
वेरी नाइस। तो ये हमारा जो अभी हमने बेनिफिट्स का ये जो हमने स्पेशल अभी चलाया, क्योंकि नवरात्रि फेस्टिव सीजन आ रहे हैं जी। ये 17 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक जो भी लोग हमारे साथ परचेज करेंगे जी। उनको ये बेनिफिट्स अवेलेबल करवाने हैं। बट किसी ने पहले ले लिया तो उनको अवेलेबल नहीं होगा ये बेनिफिट, ये तो गलत है। सर देखेंगे बिल्कुल डेफिनेटली अगर रिगार्ड्स किया जाएगा, बट अभी ये एक्सक्लूसिव वैसे इस महीने के लिए चला है क्योंकि फेस्टिव सीजन है, कुछ नया करना था तो ये इंट्रोड्यूस किया। बट बाकी भी तो आपसे ये फैसिलिटीज़ मांगेंगे सर कुछ ना कुछ, देखो ये फैसिलिटीज़ हम देते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। जैसे कि 2-4 चीज़ें हो सकता है कि अब हमारा जो फेस्टिव सीजन है इट्स टू अर्ली टू स्पीक अबाउट, शायद मूवी टिकट्स इंट्रोड्यूस कर दें। ओके। ऐसा कुछ नई नई स्कीम्स आती रहती है। अच्छा। जिन्होंने पहले लिया था उनको सिर्फ हम डिस्काउंट्स दे रहे थे ओके। मॉल के अंदर, फिर हमने होटल में बेनिफिट्स स्टार्ट किए, ओके। फिर गोल्फ कोर्स पे स्टार्ट किया, स्कूल्स में स्टार्ट किया। जी। तो शायद जैसे भी आप कह रहे हो सकता है हम बहुत जल्द आपको डायरेक्टर्स कट की टिकट्स भी दे दें 1 साल अरे के वाह, लिए। वेरी गुड। ये आपका कल्चरल जोन है? हाँ जी सर, ये कल्चरल जोन है। वहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ओपन एयर एम्फी थिएटर एरिया है। वहाँ वो वाला एरिया ना, मैं हाँ जी। जूम करता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। वो एम्पी हाँ थिएटर जी, एरिया। वो एम्फी थिएटर एरिया है। अभी आपने ग्रीन एरिया पूरा डेवलप नहीं किया है। ग्रीन अभी हमारा धीरे धीरे डेवलप होगा सर, स्केटर्ड है, काम चल रहा है जैसे आप देख बट सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा ह्यूज एरिया है ग्रीन। नहीं स्पेस बहुत है, मतलब कि ग्रीन अब जैसे ये एरिया है ये जी। बहुत अच्छी ग्रीनरी में डेवलप होनी है। ओके। अब आप जैसे कि नज़र मारिए, ये जो आपको यहाँ पे मड दिख रहा है या मिट्टी दिख रही है जी। ये ऐसा नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे कितने भी महीनों आपके- के बाद आऊँ तो मुझे ये सारा कुछ सर आपको ये अच्छे से 6 महीने में रेडी मिलेगा। 6 महीने में नेक्स्ट हाँ, रेडी मिल जाएगा? बिल्कुल जी। ओके, मैं डेफिनेटली आऊँगा जैसे ही 6 हम महीने के बाद अपने देखने के जैसे ही लिए। हम अपने ओसी की तरफ बढ़ेंगे, लैंडस्केपिंग का काम उस समय काफ़ी हद तक खत्म हो चुका होगा। ओके। सर विलाज आपके वो हैं राइट? विलाज है, 19 विला बना रहे हैं हम। बेसमेंट ग्राउंड स्टिल फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे 6 बेडरूम के साथ, ओके। जहाँ पे हम आपको स्टिल्ट पे पार्किंग देंगे, पीछे लॉन और स्प्लैश पूल होगा और Alright. लिफ्ट हम आपको इंस्टॉल करके देंगे। मुझे पीछे वो मंदिर है क्या? ये गुरुद्वारा है सेक्टर। ओके। हाँ जी। अच्छा, गुरुद्वारा के पास है? हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। ग्रीनरी बाकी आप देख रहे थे। हाँ, जैसे अभी तो ग्रीनरी इतनी नहीं है, बट आई एम श्योर कि हाँ। जैसे ये शेप करने लगेगा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल अंदर ग्रीनरी रहेगी, साथ ही साथ जो हमारी बाउंड्री है प्रोजेक्ट के चारों तरफ जी। उस पे हम हैंगिंग गार्डन बना रहे हैं। प्रोजेक्ट के चारों तरफ भी हैंगिंग गार्डन हाँ होगा। वेरी नाइस। दिल्ली एनसीआर सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है, तो आपने जो यहाँ पे यूज़ किया है टेक्नोलॉजी इसको बनाने के लिए, वो क्या यूज़ किया? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरा का पूरा एनसीआर सिस्मिक जोन 4 पे आता है। जी। हम सिस्मिक जोन 5 पे डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी सारी की सारी। सिस्मिक जोन 5? हाँ जी। और जितने भी हम आपके यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं वो फ्लाई ऐश है। ओके। और जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑब्वियसली आरसीसी का है। ओके। हाँ जब ये बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी तो Absolutely. फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल। बट आप बोल रहे 6 महीने में इसका शेप आने 6 लगेगा? महीने में अभी हॉर्टिकल्चर का काम दिखने लगेगा। Absolutely. यहाँ पे जो पानी का आप सप्लाई करोगे वो Government- क्या गवर्नमेंट सप्लाई है? गवर्नमेंट का पानी। अब वो हार्ड वाटर होगा या सॉफ्ट वाटर होगा? गुड़गांव में वैसे अब आपको हार्ड वाटर बहुत ही कम जगह पे मिलेगा। पानी जो सरकारी आ रहा है सॉफ्ट ही है। Okay. वैसे हम अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाएंगे। Okay. उसका कोई इशू नहीं है। ओके। हाँ और एसटीपी ये सब तो आप वो यूज़ करेंगे? डेफिनेटली वो हाँ, तो बायलॉज में ही बिल्कुल। है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी, वो सारा बायलॉज है, वो तो कर ही रहे हैं। जी। और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन? इलेक्ट्रिसिटी आपकी गवर्नमेंट की है, आज भी यहाँ पे सरकारी बिजली है। आ और चुकी है आपके यहाँ हाँ हाँ, और साथ ही साथ आपकी पावर बैकअप 100% है ही। ओके। 100% पावर बैकअप जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि मैं सारे एसीज ऑन कर सकता हूँ उस time पे? एब्सोल्युटली सारे एसी यूज़ कर ऐसा तो नहीं कि कुछ मुझे ऑफ करना पड़ेगा तब मैं? नहीं नहीं नहीं, आप पूरे यूज़ कर सकते हैं। ओके। जय और नितिन जी, कुछ ऐसा रह गया अभी भी जो मैंने आपसे नहीं पूछा है? मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ पूछ लिया है एज अ लेमैन। अगर कोई होम बायर है या कोई इन्वेस्टर है या रेसिडेंट है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, बट अभी भी कुछ ऐसा रहता है जो नहीं पूछा हूँ मैंने? अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ लोग आके खुद देखें और वो डिसाइड करें कि हमारा प्रोडक्ट क्यों बेहतर है और हम क्यों इसको इस टिकट साइज़ पे बेच रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, देखिए स्पेसिफिकेशन हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गई, ये आदमी खुद ही फील कर सकता है। तो मेरे आपके सारे व्यूअर्स से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं गुड़गांव में तो एक बार एम्बियंस क्रिएशंस को ज़रूर देखें आकर। हमें एक बार मौका दें, एक बार प्रॉपर्टी देखिए। कोई प्रेशर नहीं है, खरीदने का कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, और हमने कोई भी पेमेंट प्लान ऐसा नहीं कर रखा कि हम आपसे सारा पैसा ले लेंगे। वी जस्ट नीड अ टोकन अमाउंट फ्रॉम योर साइड। एक बार आप प्रॉपर्टी फाइनल करिए, हम आपके साथ पूरा सपोर्ट देंगे और टिल एंड पोजीशन तक हम आपके साथ हैं। ग्रेट। थैंक यू प्रखर जी, थैंक यू फॉर कमिंग। हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने ये प्रोजेक्ट दिखाया, जनता तक पहुंचा रहे हो आप इस प्रोजेक्ट को। एंड व्यूअर्स से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रखर जी बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय थैंक यू।